آج کا واقعہ ہے ایک اللہ والے بولنے والی بکری اور بدکار عورت کا۔ ایک خوبصورت سا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اللہ والے کے ساتھ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی، تو اس کے ساتھ آخر کیا ہوا اور بولنے والی بکری کا کیا واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت واقعہ۔ گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کے اچھے عمل سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اس بستی کا سردار اس اللہ والے کا مرید تھا۔ اسے کوئی بھی مسئلہ اگر درپیش ہوتا تو وہ فوراً اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے کی عبادت اور اچھے کاموں کی وجہ سے خوش ہو کر وہاں ایک انگور کی بیل پیدا کر دی تھی۔ اس بیل میں چھوٹے چھوٹے انگور نہیں آتے تھے، بلکہ ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ وہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اس اللہ والے کا مقام ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ وہ کبھی اس پہاڑ سے نیچے اتر کر نہیں آئے تھے۔ ایک آدمی جس کا اپنے پھلوں کا باغ تھا، وہ ہمیشہ یہ بات سوچتا کہ میرے پاس تو اتنے بڑے انگور کبھی نہیں ہوئے، آخر اس نے ایسا کون سا بیج بویا ہے، کیسے میٹھے رسیلے انگور اس اللہ والے کے یہاں لگتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ والے کو بدنام کرنے کی سازش رچتا رہتا۔ جو لوگ دور دراز سے اس اللہ والے کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ کس طرح ان کے دلوں میں اس اللہ والے کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ شیطانی گھٹیا سوچ والے ایسی گندی باتیں سوچ رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے کو نیچا دکھایا جائے، کیسے اسے بدنام کیا جائے۔ ایک فحاشہ عورت جس کے ساتھ اس شیطانی دماغ والے انسان کے ناجائز تعلقات تھے، ایک دن وہ اسے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کتنے کام آتی ہو۔ وہ عورت کہنے لگی، جو کام بھی مجھ سے لینا چاہتے ہو تم لے سکتے ہو، اور خبردار کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فحاشہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہر کام کا تو نے مجھے معاوضہ دیا ہے، تو پھر آج تم میرے لیے کیا کرنا چاہو گے؟ وہ شخص کہنے لگا، جو چاہے لے لینا، لیکن کام تو سن لے۔ اس باغ والے نے کہا کہ اوپر پہاڑ پر جہاں وہ اللہ والے رہتے ہیں، بس اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کر کے وہ سب کی نظروں میں گر جائے۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جو لوگ اس سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، گاؤں کا سردار جو اس کا مرید بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کے ساتھ مشورہ لیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور وہ انگور کی بیل جو اس کے پاس لگی ہوئی ہے، میں اسے لا کر اپنے باغ میں لگا لوں گا، پھر میرے باغ میں بھی بڑے بڑے انگور لگیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام بہت آسانی سے کر دوں گی، لیکن بات وہی ہے کہ اس بات کے لیے تم مجھے کتنے پیسے دو گے؟ اس شخص نے کہا، ارے میں نے کہا نا، جو چاہے لے سکتی ہو۔ چل، میرے پاس ایک نایاب بکری ہے جو بہت ہی زیادہ دودھ دیتی ہے، وہ لے لینا اور تو جا کر اپنا کام شروع کر۔ سب ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ عورت ایک غریب عورت کے روپ میں بکری کو ساتھ لے کر اس اللہ والے کی گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ چکی تو اسے ایک مکان نظر آیا۔ دروازے پر جا کر اس نے دستک دی۔ اللہ والے نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں غریب بے سہارا اور اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اب اکیلے جانے میں مجھے خوف لگ رہا ہے، آپ ایک رات مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، میں کسی غیر عورت کو، اجنبی عورت کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ عورت زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کو یہ انکار برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا تھا آپ کوئی بھلے انسان ہیں، اچھی آپ کی تعریف سن رکھی تھی، مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے دے، میں اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں، میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ والے نے جب اس عورت کی آواز کو سنا تو وہ اس کے فتنے سے ناواقف تھا۔ اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ،
पर मेरी इबादत के कमरे से दूर रहना। वो चालाक औरत मुस्कुराई और अपनी बकरी को साथ लेकर कमरे में दाखिल हो गई। घर के कोने में अंगूर की एक बेल थी। उसने अपनी बकरी को ले जाकर उस बेल के साथ बांध दिया ताकि बकरी को जब खोलेगी तो अंगूर की बेल भी उखड़कर उसके साथ ही आ जाएगी। अल्लाह वाले फिर से अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। वो औरत जो अपने आप पर बहुत गरूर कर रही थी कि मैं तो एक झटके में उस आदमी को अपने जाल में फंसा लूंगी। मैंने अपने हुस्न जमाल के जाल में फंसाए बहुत से मर्द हैं। वो यही सोच लिए जो अब तक इबादत वाली जगह से दूर थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उस पाक जगह के पास जाने लगी। जब अल्लाह वाले ने सलाम फेरा तो उसको इतना करीब पाकर वो कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से फासले पर जाकर बैठो। वो कहने लगी, दरअसल मुझे भूख लगी है, बस मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दे। अल्लाह वाले ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है, मेरे पास सिर्फ अंगूर है। अल्लाह वाले ने उसको अंगूर तोड़ कर दिया। वो आधा अंगूर भी नहीं खा सकी। उसके बाद वो अंगूर को फेंकना चाहती थी तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा हरगिज न करना, अंगूर इस तरह फेंकोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात सुनते ही वो हंसने लगी और कहने लगी, क्या बुरा हो जाएगा? अल्लाह वाले ने कहा कि ये बरकत वाले हैं, उसके एक एक कतरे में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, इसलिए तुमने जितना खाना था खा लिया, अब देखो क्या होता है। बदकार औरत देखती रही। अंगूर फिर से उसी शक्ल में आ गया जैसे उसे किसी ने खाया भी ना हो। अल्लाह की कुदरत की इस निशानी को देखने के बावजूद उसका ईमान ना जागा। उस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ फिर भी पैदा ना हुआ। अल्लाह वाले जैसे ही फिर से तस्बीह पढ़ने लगे, वो औरत पास आकर बोली, क्या मुझ में खूबसूरती नजर नहीं आती? मैं बेबस लाचार तन्हा औरत हूँ जिसका कोई भी नहीं। क्या मुझे आपका साथ नहीं मिल सकता? मैं वादा करती हूँ मैं पूरी जिंदगी आपकी बांदी बनकर रहूंगी। मेरा आप पर दिल आ गया है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैं आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। किसी को भी पता नहीं चलेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में। अल्लाह वाले ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में कहने लगे, यहाँ एक रात की पनाह लेने के लिए आई थी या मुझसे गलत काम करवाने के इरादे से आई थी? वो अंगूर खा चुकी थी तो सच कहने लगी, मुझे आपके साथ रात गुजारनी है। मेरे उस बाग वाले मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि अपनी कातलाना अदाओं से मैं आपको भटका दूं। अल्लाह वाले ने पूछा कि वो क्यों ऐसा चाहता है? वो कहने लगी, इसलिए ऐसा चाहता है ताकि उसकी नेक नामी पर दब्बा लग जाए, आप बदनाम हो जाएं, लोग जो आपकी बहुत इज्जत करते हैं आपके खिलाफ हो जाएं, आपके किरदार पर कीचड़ उछाले। और ये अंगूर की बेल जो अपने बाग में ले जाकर लगाना चाहता है ताकि उसके बाग में बड़े बड़े अंगूर लगे। अल्लाह वाले ने उस औरत से सारे का सारा सच उगलवा लिया। उस बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को बर्दाश्त किया और कहा, और तू क्या चाहती है? वो कहने लगी, मैं आपके साथ वही काम करना चाहती हूँ जो उसके साथ हमेशा करती आ रही हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे जरा भी खौफ नहीं, मैं बस आपके साथ रात गुजारना चाहती हूँ और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को कानो खान खबर नहीं होगी। अल्लाह वाले ने कहा, किसी को पता चले ना चले, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ देख रहा है। तू चुपचाप यहाँ से वापस चली जा, तू बच जाएगी। अगर तूने वही गलती की जो कितनी बदकार औरतें करती रहती हैं, सिर्फ दौलत के लालच में, तो तेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद न कर, चुपचाप यहाँ से चली जा। अल्लाह से डर, अल्लाह की पकड़ से डर, कब्र के अजाब से डर, आखिरत के अजाब से डर, तौबा कर ले उस बुरे काम से हमेशा के लिए और चुपचाप यहाँ से चली जा। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा बल्कि तेरे हक में हिदायत की दुआ करूँगा। वो कहने लगी, मैंने अपने मालिक का नमक खाया है, इसलिए मैं आपके साथ आज की रात गुजार कर ही जाऊंगी। वो गलत इरादे से अल्लाह वाले के करीब आने लगी और अचानक एक ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई और उसी मौका पर वो हलाक हो गई। ये सब कुछ देखकर वो अल्लाह वाले जरा भी ना घबराए, बल्कि वो जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है। अब उस औरत का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना था। यहाँ पर उसका मालिक जो उस औरत से ये कह चुका था कि सुबह तक वापस नहीं आई तो अपने साथियों के साथ तेरे पास आ जाऊंगा, और यही हुआ। वो औरत सुबह तक वही पड़ी रही।
अल्लाह वाले ने उसको एक चादर से ढक दिया था। वो आदमी अपनी साथियों के साथ अल्लाह वाले के उस मुकाम तक पहुंचा। अल्लाह वाला इबादत में मसरूफ था। वो शख्स कहने लगा, देखो वो आदमी तो उधर नमाज पढ़ रहा है और मेरी नुकरानी को ढूंढो। अब उस नुकरानी को ढूंढने लगे, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उस नुकरानी की लाश वहाँ पड़ी हुई है और बकरी भी बेल के साथ बंधी हुई थी। उस बदकार औरत की लाश को देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है और बकरी भी वहाँ बंधी हुई है। उस आदमी ने मेरी मुलाजिमा का कत्ल कर दिया। मैंने तो उसे उस अल्लाह वाले की खिदमत के लिए भेजा था, बकरी का दूध पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन उसने तो उसका कत्ल ही कर दिया और मुझे लगता है कि उसने उसके साथ बदकारी भी जरूर की होगी। उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो अब उसको सजा दो। अब वो लोग जो अल्लाह वाले की इज्जत करते थे वो भी उस जालिम की बोली बोलने लगे। लोगों ने कहा कि तुमने तो एक गरीब औरत का कत्ल ही कर दिया। हम तो आपको अल्लाह का नेक बंदा समझते थे। आपके बारे में कभी भी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। हम आप पर कितना भरोसा करते थे, आपसे दुआएं करवाते थे। अब हम आपको अपने सरदार के पास लेकर जाएंगे। वो आदमी चीख चीख कर कहने लगा कि सरदार के पास ले जाओ, उस आदमी का मरीद खास है, उसको भी पता चले कि ये आदमी कितना बुरा है। उसके बाद उन लोगों ने अल्लाह वाले को जंजीरों में जकड़ लिया। वो आदमी चुपके से अंगूर की बेल के पास गया। उसने बकरी को खोलने के बहाने वो बेल भी निकाल ली और चालाकी के साथ अपने साथ लेकर चल पड़ा। वो अल्लाह वाले उन तमाम लोगों की बातों को सुनकर खामोश थे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला की जात पर भरोसा था कि वो जरूर उनकी गवाही दिलाएंगे। उस अल्लाह वाले को बीच चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ का सरदार भी उधर पहुंच गया और कहने लगा, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते थे, मैं तो आपका मरीद खास था, हमेशा आपसे दुआएं करवाता था, आपसे मशवरा किया करता था, लेकिन आपने गरीब और लाचार औरत के साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने अब तक अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोश था, लेकिन तुम लोग उस बात पर यकीन कर सकते हो। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? अल्लाह वाले की बातें सुनकर सरदार कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, यकीन नहीं करता, लेकिन ये लोग तो यही कह रहे हैं न कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, कभी कभी आंखों का देखा भी तो झूठ होता है। अगर कोई मेरी गवाही दे तो क्या तुम यकीन करोगे? सरदार कहने लगा, भला कौन आपकी गवाही देगा? ये आदमी तो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं और मैं उनकी बातों पर यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग 10 आदमी हैं जिन्होंने आपको ऐसी हालत में देखा। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें देखा? मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था। वो बस्ती का सरदार बोला, आपको अल्लाह की इबादत करते देखा, लेकिन वो औरत तो वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसके फटे हुए कपड़े उसकी रात का हाल बता रहे थे, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे उन आदमियों की गवाही नहीं चाहिए जो कि जरा सी बात पर बिक गए और मेरे खिलाफ बोलने लगे। मैं इंसानों पर भरोसा ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला किसको आपकी गवाही के लिए भेजेगा? अल्लाह वाले ने कहा, वहाँ पर कोई इंसान तो मौजूद नहीं था, लेकिन उस औरत की बकरी जरूर मौजूद थी। अगर वही मेरे लिए गवाही दे दे तो क्या तुम लोग मान लोगे, मेरा यकीन करोगे? अल्लाह वाले की बातें सुनकर तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा तो क्या अब एक बेजुबान जानवर आपके लिए गवाही देगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर हम आपकी बात को मान लेंगे और कहेंगे कि आप सच्चे हैं, आपने जो कुछ कहा वो सच है, हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। जिसने भी ये गुनाह किया है उसको सजा दी जाएगी। अल्लाह वाले के सामने उस बकरी को लाया गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग बकरी को तो लेकर आ चुके हो, लेकिन अब मुझे एक अंगूर भी चाहिए। वो सरदार कहने लगा, अंगूर की बेल कहाँ है? अल्लाह वाले ने बाग वाले की तरफ देखा और कहा, उसके पास वो अंगूर की बेल है, अंगूर तोड़कर ला कर दो। अल्लाह वाले की बात पर वो आदमी थर थर कांपने लगा। सरदार का हुक्म था, इसलिए अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया, वरना वो ऐसा कभी भी न करना चाहता था। मजबूरन उसने अंगूर तोड़ा और अल्लाह वाले के पास ले जाकर दे दिया। अब वो अल्लाह वाले कहने लगे, उस अंगूर का रस थोड़ा सा निकाल लो और उस बकरी के मुंह में डालो।
ये बात सुनते ही वो तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे। अजीब तमाशा हो रहा है। और सब कहने लगे कि ये बकरी तुम्हारे हक में गवाही देगी। तो अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात को मानो। अल्लाह ताला को अगर तुम मानते हो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उस वक्त ये अमल किया जा रहा था। अंगूर का रस निकाल कर बकरी को पिलाने की तैयारी की जा रही थी और यहाँ पर अल्लाह वाले उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह तू सब कुछ जानता है, तूने सब कुछ देखा है, मैंने हमेशा सिर्फ तुझसे मोहब्बत की है, तेरी इबादत की है। मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है, क्योंकि अपने बंदों से पहले मोहब्बत करता है तो मैं इस अजाब से बच सकता हूँ। फिर मुझे उस बकरी की गवाही मिल जाए। ये बकरी मेरे लिए बहुत अहम है कि मैं मौत से डरता हूँ, मैं डरता हूँ जिल्लत और रसवाई से। बस तू मुझसे नाराज ना होना, दुनिया भले मुझे छोड़ दे। मैं इसलिए गवाही नहीं चाहता कि लोग मेरी इज्जत करे, मेरे आगे पीछे फिरे। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग ये ना सोचें कि अल्लाह की इबादत करने वाला एक बदकार शख्स निकला। वो जिसे हमने अल्लाह वाला समझ रखा था वो तो अल्लाह का नाफरमान और बागी निकला। इसलिए या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, इस बकरी को बोलने वाला बना दे, उस बकरी को मेरा गवाह बना दे। यहाँ पर जैसे ही अंगूर का रस बकरी के मुंह में डाला गया, अल्लाह पाक के हुक्म से वो फौरन बोल उठी। उसने कहा, मैं गवाही देती हूँ एक रब की जिसको हम सब अपना रब मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मैं शहादत देती हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो बदकार औरत उस नेक अल्लाह वाले को बहकाना चाहती थी और वो उस बाग वाले आदमी की तरफ से भेजी गई थी। अल्लाह वाले से जलता है, हसद करता है और ये उन लोगों के सामने उनको बुरा बनाना चाहता था, इसलिए उसने ये सारा खेल रचाया। असल में ये बेल अल्लाह ताला ने उन अल्लाह वाले को दी थी। ये उसको पाना चाहता था और अपने बाग में लगाकर बड़े बड़े अंगूर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। ये उसी की चाल थी और वो औरत कोई गरीब औरत नहीं थी बल्कि उसकी एक नौकरानी थी। असल में कसूरवार ये बाग वाला है, औरत है, अल्लाह वाले का कोई कसूर नहीं। जब असलियत का पता चल चुका तो सरदार उस बाग वाले के पास आया। उसने कहा, तुमने एक नेक अल्लाह वाले के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। और बकरी की गवाही कबूल की गई। वो औरत जो अपने अंजाम तक पहुंच गई, अब तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उसे सबके सामने फांसी दे दी गई। अल्लाह वाले फिर से अपने मकान पर आ गए। अंगूर की बेल जो पहले उस आदमी के पास आकर सूख चुकी थी, अल्लाह वाले ने उसे अपनी जगह पर लगाया। वो फिर से हरी भरी हो गई और वो बकरी भी उसको तोहफे के तौर पर दे दी गई। लोग फिर से उनके पास दुआ के लिए आने लगे। दोस्तों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। गलत रास्ते को चुनना है तो उसका अंजाम फिर इसी तरह से होता है। इसलिए हमेशा अपने हक के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।